Disclaimer: all the objects, people, places, and incidents in this play are fictitious. Any resemblance to real life is purely coincidental. There is a famous saying: "It is easy to keep smiling when life flows by like a song. A man worthwhile is the one who keeps smiling when everything goes dead wrong." True, life is a journey filled with both sweet and bitter experiences. Here, we present a play, Zindagi, portraying this truth about life through the eyes of a young research student. A research scholar is there in his lab. Despite his efforts, his research has failed to give him good results. He is worried, frustrated, and depressed. Let us see what he is up to. हेलो 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 हेलो। और कहाँ पे? रुक, मैं बताता हूँ। लैब में। 4 साल हो गए तेरे पीएचडी। हम सब दोस्तों की शादी हो गई, एक दो के तो बच्चे भी हो गए। सुन रहा है ना? मैं बोल रहा था तेरा पीएचडी कब खत्म होगा, नौकरी कब लगेगी, और शादी करना भी है या नहीं? हेलो हेलो, कोई सुन रहा है? हेलो काट दिया था। I have to deal this every day. What life? What do I get from all this? I need a means of escape. राग सुनो रे दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। हिमालय की खूबसूरत वादियों में, झरनों के बीच आइए तो एक बार। पहाड़ों की ठंडी हवाएं कर रही हैं आपका इंतजार। ऊंचे पहाड़ों के बीच शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में आइए, गर्म चाय और पहाड़ी संस्कृति का अनुभव लीजिए। शिमला में आइए एक बार, दिल में शांति गूंजेगी बार बार। That place seems to be very beautiful. People there must be happy. There must be someone, somebody whose life is fruitful, perfect, and happy. I must seek that person. He will be my guide. He will be my idol too. Yes. Perfect life, here I come. The student has reached the airport. He is waiting for the boarding call for the flight to Shimla. Excuse me, madam. Yes. Are you traveling to Shimla? No, I am traveling to Kolkata for a conference. Conference? Yes. Are you a research scholar? No, my dear. I am a professor of cell biology from IACBS. Professor? Really? Yes. Are you a typical crazy, angry, unpredicted one? Students feel the same and had the opinion when I was a student. I hope your
were sympathizing with me. When I was joined as a research student, I had a great ambition. One day, my research work will be published in Nature, Science, or at least in PRI. But after 4 years, my all dreams remain a castle in the air. I don't have a single paper. I even don't know why I am doing research anymore. Yes, I understand your problem. But now, Okay, okay. I think. Sorry, how What do you exactly? finish? Okay. How do you finish your PhD? Actually, after hard work, I just got my degree in 6 years. But hard work. I also do hard work, madam. No, hard work is not sufficient, my dear. Maybe you are not working properly. See, actually, you have to work systematically. Research has to be done systematically in a proper way. Yeah. Okay. So for any new discovery, you need to start with a controlled experiment, systematically tweak the parameter. Okay. So without systematically recording every step, you cannot achieve anything in your research. This is a final call for boarding. Final call for boarding for the Air India flight AIF420 to Kolkata. The passengers are requested to proceed to gate number 10. This is your final call. All board, please. Okay, good luck, my dear. It is for my time for my flight. Okay, thank you. She exactly sound like my boss. Kind attention please. We regret to inform the passengers who are traveling to Delhi, Chandigarh and Shimla that due to bad weather, all the flights to these destinations have been cancelled. We repeat, all the flights to Delhi, Chandigarh and Shimla have been cancelled due to bad weather. The inconvenience caused is regretted. Thank you. The student is frustrated that his flight has been cancelled. So, now he is trying to catch a train to Shimla. Shimla Express, Shimla Express, Shimla Express, Shimla Express. Babaji, stand, stand. Shimla Express, Shimla Express, Shimla Express. Madam, madam, madam. Shimla Express, Shimla Express, Shimla Express. भैया, भैया. Shimla Express, Shimla Express, Shimla Express, Shimla Express. भैया, Shimla Express कितने नंबर? अरे भैया, 7 नंबर पर. जल्दी कीजिए, बैग कीजिए, बैग कीजिए. अरे ट्रेन छोड़ देगा, छोड़ दीजिए. भैया, ठीक से लिखिए. आइए. भैया, एक बात पूछे. यही कोई 700 से 800 कमा लेते हैं और ये तो खूब से ही तब तो खूब अच्छा से काम चल जाता होगा. नहीं भैया, 4000 तो सिर्फ लाइसेंस का है, ऊपर से कंट्रैक्टर का कमीशन महीने में 15000 से 16000 हो ही जाता है. ऊपर से घर का खर्च, बेटी का पढ़ाई, ट्यूशन खर्च बड़े मुश्किल से हो पाता है. बेटी बड़ी हुनर है, 10th क्लास में पढ़ती है, बोलते हैं पढ़ाई करके आगे कलेक्टर बनेगी. कितना क्या मुश्किल है, बस बैग उठाओ और कमाओ. आसान ही तो है. इतना आसान नहीं है भैया, हमारा कोई फिक्स कमाई नहीं है. डेली वजह से आज जो मिलता है कल को नहीं भी मिल सकता है. ना कोई छुट्टी ना कोई हॉलीडे. थोड़ा ज्यादा पढ़ाई कर लेते ना तो अच्छा जॉब कर लो, ज्यादा पैसा कमाई हो जाती. जॉब कमाई इसमें जो शांति है ना वो और कहीं भी बात नहीं. क्या शांति भैया, शांति वांति कुछ नहीं है. बैग उठाने में बड़ा कंपटीशन है और क्या, पुलिस का चक्कर बड़े परेशान करते रहते हैं. ऐसा ही होता है भैया. आगे तो और भी भीड़ होगा. नेक्स्ट ट्रेन कल सुबह है.
तो यहाँ पे कोई खाने का अच्छी जगह है? हाँ भैया, प्लेटफॉर्म में मिल जाए, छोड़ दे क्या? नहीं। The student decides to wait for the next train. He is hungry. So, he goes to the railway canteen to grab a snack. देखिए भैया, क्या कर रहे हो? पागल है क्या? पागल। May I join you, madam? Yeah, take a seat. Thank you. Well, sir, did you collect your token or did you just jump the line? Excuse me? Oh, sorry. I spoke out of habit. That's okay, but speaking of token, do you work at the railway reservation counter? Oh, no. I work for KBI. I'm a cashier at the Malleshwaram branch. Oh, cashier. That's best job one can get. Who would not like to handle plenty of money every day? Well, sir, this is one of the most difficult jobs in the world. Imagine handling all the money that you can see and then going home empty-handed at the end of the day. This is the most depressing job ever. But ma'am, you're well paid and your job is secure. What more do you need for a happy life? Job security. What about life security? We literally hold our lives in our hands, anticipating trouble. You didn't give your introduction. What do you do? I am a research student. I see. That explains your confusion. From the comforts of your lab, you'll never understand the uncertainty in our lives. We are constantly on the move, like nomads, because of all the transfers. And take the current situation of demonetization. We had to work literally 24/7. And also, there is constant peer pressuring the work to give in to corruption. True. I never realized this aspect of an officer life. But madam, student life is not as comfortable as you may think. Well, what brought you out of your lab today? Well, you know, I am traveling a countryside and trying to find meaning of life. क्या आप परेशान हैं? क्या आपके जीवन में शांति नहीं है? क्या आप हर पल टेंशन से पागल हो रहे हैं? तो समझिए कि आपके सारे प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। मिलिए सन्यासी बाबा से, जल्दी ही आपके जीवन में शांति भर जाएगी। भक्तों के शांतिदायक सन्यासी बाबा से मिलने के लिए आइए। शांतिधाम आश्रम, सबसे छोटी गली, शांतिपुरा, हुबली 560012। Looks like you have found your person. But well, all these Babas are the same. अरे नहीं, बाबा बहुत ही पहुंचे हुए हैं। बाबा का बहुत बड़ा नाम है, आपको पता नहीं है? सेठ किरोड़ी मल जी की 2 करोड़ की लॉटरी बाबा के आशीर्वाद से ही लगी है। और ये देखिए, ये क्या है? ये सोने की चेन, ये बाबा ने मुझे दी है, वो भी फ्री में। ये सच है क्या? और क्या झूठ बोलने के लिए उधर से इधर थोड़े आए हम। हाँ, इस गांव का नाम भी बाबा के नाम पे रख दिया है, शांतिपुर। I must visit Baba. I should give it a try. Good luck. But in case you change your mind, you can opt for yoga. I do it every day. The student is eager to meet Sannyasi Baba. He feels that the Baba would guide him towards a peaceful life. So, he catches a bus to Shantipura. The bus has stopped at a dhaba for refreshments. ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಸ್ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ.
राजू राजू, अरे कहाँ खो गए थे तुम? अरे कस्टमर लोग बैठे हैं, जल्दी से फटाफट टेबल क्लीन करो और खाना लगाओ। चलो भाई लोग, अब फटाफट ऑर्डर कर दो। हाँ, क्या क्या है खाने में? जी मैम, आलू पराठा, गोभी पराठा, ऑनियन पराठा, चीज डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा, इडली, सांभर, चिकन बिरयानी। मेरे लिए अदरक कॉफी और बाकी सबके लिए मसाला चाय कर दीजिए। नहीं ला सकते मैडम। नहीं ला सकता मतलब? अरे मिल्क नहीं है, इसीलिए नो कॉफी नो चाय। है। तो मेनू में काहे बताया? आदत हो गया ना, रट्टा जो लगा रखा है। अच्छा, तो क्या है? फिर से बताओ। जी साहब, आलू पराठा, गोभी पराठा, ऑनियन पराठा, चीज डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा, इडली, सांभर। गुलाब जामुन तो होंगे? जी। वही कर दीजिए सबके लिए। अच्छा। हमरे लिए सादा पानी। ये तो फ्री है, कुछ और ऑर्डर करो। आज बिना लेमन के लेमन टी मिलेगी? जी 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 सर। खुश रहो बबुआ। और भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं संतरीधाम आश्रम के लिए आया हूँ, सन्यासी बाबा से मिलने। अच्छा, सन्यासी बाबा। हाँ, वो तो बहुत ही महान बाबा हैं। बबुआ तू यकीन न करबा, उनकर कृपा से हमरी तो जिंदगी बदल गई। हाँ? आपकी जिंदगी बदल गई? बाबा तो बहुत चमत्कारी है, वो तो चमत्कार पे चमत्कार कर रहे हैं। और नहीं तो का, पहले हमरा बेटा जैक्सन बिल्कुल निकम्मा था। कोनो काम धंधा नहीं करता था। बाबा की कृपा से उसकी लल्लन टॉप नौकरी लग गई। बहुत ही अच्छा कमा लेता है भाई साहब। बाबा तो अंतर्यामी है, अपार महिमाएं। अब हमको ही देख लीजिए, हमार लुगाई विमला के शादी के हो गए थे 10 साल, पर विमला मां ना बन पाई। कुछ नहीं ट्राई किए, ये दवाई वो दवाई, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या किया? तब जाके किसी ने हमको बाबा जी के बारे में बताया। तो ये बाबा में तो हम विश्वास ना रखते थे, लेकिन विश्वास कीजिए मैडम जी, बाबा के चमत्कारी आशीर्वाद से 1 साल में हमारे घर में लल्ला है। ऐसे भी होते हैं क्या? लल्ला के बारे में हम झूठ बोलेंगे क्या? अरे हमने भी बहुत चर्चे सुने हैं अपनी सोसाइटी में इन बाबा के। लोग कर लो बातें। अरे चर्चा नहीं मैडम जी, महिमा कहते हैं, बाबा का महिमा। एक ही बात है, हमारी पड़ोसन को ले लीजिए, हमारी पड़ोसन भाग गई थी किसी के साथ। हाय दैया, कल मुंह ही कहीं। वो भला हो इस बाबा का, जो 2 ही दिन में वापस बुला लिया अपने चमत्कार से। बाबा बहुत ही महान हैं। यहाँ के नेता, MLA, MP सब बाबा के भक्त हैं। और तो और बाबा के कहने पे अस्पताल भी खुल गया है। हाँ, और क्या, गांव में जो हाई स्कूल बन रही है उसकी मंजूरी भी बाबा ने लगवाई है। अरे बस इतना ही नहीं, मेरे बेटा पप्पू ने 4 साल से एग्जाम में फेल हो रहा है, लेकिन इस साल बाबा का आशीर्वाद से पप्पू पास हो गया। अरे जगह दो। ये रहा गुलाब जामुन। ये क्या है? अरे आपने ही तो ऑर्डर किया था। ये मैडम के लिए गुलाब और बाकी सबके लिए जामुन, वही तो लाया। अब बोलता है क्या लाया। अरे हमारा चाय तो अरे बस छूट जाएगी, जो है खा लो। बड़ा ही निकम्मा और वाहियात किस्म के नौकर है आपके। कहाँ से लाए इसको? अरे ये तो मुझे भी परेशान करके रखते हैं, कुछ भी बात को इधर से उधर बना देते हैं, तोड़ मोड़ कर देते हैं। अरे राजू, अरे हाँ सर, अरे राजू इधर आओ। सेल्फी मैंने ले लिया। इस टोकरी को बाबा का आश्रम में पहुंचा देना। बाबा ने कहा था पप्पू पास हो जाने पे टोकरी पहुंचा देना। पर मुझे पता मालूम नहीं है, मैं कैसे जाऊँ? अरे इन लोगों के साथ बस में चले जाओ और रास्ते में किसी को भी रास्ता पूछ लेना, सबको बाबा का आश्रम पता है। जल्दी चलिए, बात आ रही है।
पैसा लेके जाइए। The bus has reached Shantipura. The student and Raju alight from the bus and look for directions to reach the ashram. अरे साहब, ये आपका गांव है क्या? नहीं भैया, मैं आया शांति बाबा से। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। चलिए साथ में चल। आपको पता है रास्ता? नहीं, इसको पूछो। अरे मनी के हुआ, जाति हुआ, संति के हुआ तो मनी हुआ। अम्मा, अम्मा, मनी हुआ। ये शांति का रास्ता कैसे जाना? आश्रम को बेकार है। राइट होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी, आश्रम है ना। राइट जाना, लेफ्ट जाना, राइट जाना, आश्रम आना। ओके ओके, धन्यवाद। नहीं नमस्कार। ये बताइए। मास्टर जी, अरे ओ मास्टर जी, ये शांतिधाम आश्रम किधर पड़ेगा? सुन लेगा। अरे मैं पूछ रहा हूँ ये शांतिधाम आश्रम किधर है? नहीं बताएंगे, कोई सुन लेगा। कोई क्यों सुन लेगा मास्टर जी? अरे ये काम किसी है सुनने के लिए ना, कोई सुन लेगा। अजी, क्यों लोगों के कान फ्यूज करते रहते हो? मतलब कंफ्यूज क्यों करते रहते हो? इन्हें थोड़ा कम सुनाई देता है, कान खराब है ना? ओह अच्छा अच्छा, सॉरी पता नहीं था। हाँ बेटा बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? आप वो शांतिपुर आश्रम का पता बता दीजिए बस। अरे वो सामने ही तो है। अरे दिखाई दे रहा है सर, थैंक यू। चलेगा बेटा। अजी, जूस पी लीजिए, जूस। The student and Raju enter the ashram main hall. आपकी कृपा से पप्पू पास हो गया ना? बाबा तो महान है। अलग निरंजन बम बम भोले, अलग निरंजन बम बम भोले। आएगा वो आएगा, जिसकी किस्मत चमकेगी वो आएगा, जिसके जीवन में खुशियां बरसेगी वो आएगा। गुरुजी। अलग निरंजन बम बम भोले। बोल बालक बोल, तुझे क्या कष्ट है? गुरुजी लगता है बालक को बहुत घोर कष्ट है। अलग निरंजन बम बम भोले। तुम चुप रहो, बालक को बोल। बोलो बोलो। बाबा मैं परेशान हूँ, मुझे शांति चाहिए। बस बाबा को सब पता है। क्यों बाबा पता है? बाबा सब जानते हैं। अलग निरंजन बम बम भोले। तो प्रभु करिए इस सांसारिक प्राणी का उद्धार करिए। क्लिंग 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 चामुंडा बच्चे। समझा, अब समझा। बालक, तू एक पढ़ा लिखा प्राणी दिखाई पड़ता है। तेरे माथे की ये लकीरें बता रही हैं कि तेरा कोई काम ठीक नहीं चल रहा। तेरे जीवन में घोर कष्ट है। कुछ समाधान, कुछ उपाय बताइए। समाधान है, लेकिन कठिन है। कोई बात नहीं बाबा, आप बस समाधान बताइए, बाकी बालक सब कर लेगा। क्यों कर लेगा ना? तभी सुनो, 100 गुलर के फूल, 101 कमल के गट्टे और पूरे 100 काले शाह कौओं की पोटी से आने वाले अमावस के दिन चांद की पूजा करो। तुम्हारे सब कष्ट मिट जाएंगे, सुख शांति होगी। अलग निरंजन बम बम भोले। बाबा अलग निरंजन बम बम भोले। पूजा नहीं हो पाएगा, नादान परिंदा, गले में मुसीबतों का फंदा है, ना जाने कैसे जिंदा है। अलग निरंजन बम बम भोले। बाबा को धर्म संकट में डाल दिया।
ठीक है, ये पूजा भी हम कर देंगे। तुम बस हुंडी में 5000 रुपए का दान कर दो, बाकी बाबा संभाल लेंगे। अलख निरंजन बम बम भोले, अलख निरंजन बम बम भोले, अलख निरंजन बम बम भोले, अलख निरंजन बम बम भोले। कम है भाई। तो वत्स, अब हम तुम्हें जीवन जीने का रामबाण तरीका सिखाएंगे। तो बेटा जय किशन, सिखा दो मुर्गासन। इधर खड़े हो जाओ। सामने देखो। अलख निरंजन बम बम भोले, कान क्यों छूट जा रहे हैं तुम्हारे? अलख निरंजन बम बम भोले। सामने देखते रहो। ठीक है वत्स, तुम प्रथम परीक्षा में सफल हुए। अलख निरंजन बम बम भोले। अब आता है तुम्हारा दूसरा चरण और अंतिम भी। अगर ये कर पाओगे तो हमेशा खुशियां पाओगे। बैठ जाओ, एक हाथ को जमीन पे रखो। रखो रखो। दूसरे हाथ से आसमान को छू लो। और फिर धरती और आसमान को पकड़ के मिला लो। और ऐसा 100 बार करना है। कर दो। 100 बार। बाबा लगता है इससे नहीं हो पाएगा। उसकी भी युक्ति है। 5000 रुपए और डाल। अलख निरंजन बम बम भोले, अलख निरंजन बम बम भोले, अलख निरंजन बम बम भोले। और ये घड़ी ना, अलख निरंजन बम बम भोले, अलख निरंजन बम बम भोले, अलख निरंजन बम बम भोले। ठीक है बालक, अब तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। आराम से घर जाओ। और मेरे को सवाल थे, सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। जब पूछना तो उत्तर दीजिए। बालक, अब भाई हमारी समाधि का समय हो गया है। जी बाबा। चलिए। मैं पूछना, अब कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं हम समाधि में। अलख निरंजन बम बम भोले। जय सन्यासी बाबा। कुछ तो पता क्या जाओ, मुझे शांति कैसे मिले? The student is back on the road from the ashram. He looks at the lush green fields on either side and admires the peaceful life of the villagers. Just then, he spots a farmer working on a field. भैया, पीने का पानी होगा? हाँ, क्यों नहीं? ये लीजिए पानी। भैया, पहले कभी आपको देखा नहीं। कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जाओगे? मैं आश्रम से आ रहा हूँ, बाबा से मिलके। बाबा बोल रहे थे मेरे सारी समस्या का समाधान कर दे, पर पता नहीं कैसे होगा। कितना का चूना लगा? चूना? हाँ, चूना। ये 5000 और उसके साथ 4000 का घड़ी। रोजाना हर कोई आश्रम में आता है और ठगा जाता है। आप तो पढ़े लिखे और समझदार दिखते हैं, आप कैसे इन चक्कर में फंस गए? बाबा के बारे में हर कोई अच्छा ही बोले थे, मैं इसीलिए आए थे। मेरे जिंदगी में शांति नहीं है, मेरी जिंदगी सिर्फ दुख है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। इसमें घबराने का क्या बात है? यही तो जीवन है और सुख दुख सब इसका अभिन्न अंग है। पर मेरे साथ ही क्यों? सिर्फ आपके साथ ही नहीं, सबके साथ ही ऐसा होता है, लेकिन कौन इसको कैसे लेता है वही खास बात है। और किसी को दुख मिले तो उस स्थिति में कोई क्या करे? दुख के टाइम कष्ट होता है, ये बात सच है, लेकिन उस टाइम में हम लोग को सामने जाना चाहिए।
साथ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आपको क्या दिखाई दे रहा है? फूलों का बगीचा। ध्यान से देखो बगीचा में क्या क्या है। इसमें है छोटे पौधे, बड़े पौधे, कलियां, खिले फूल, सूखे फूल, झड़े हुए फूल, हरे पत्ते, सूखे पत्ते, झड़े हुए पत्ते, सब कुछ है इसमें। ये सभी इस बगीचे को खूबसूरत बनाता है। पर इसके साथ जीवन का क्या लेना देना है? एकदम ऐसा ही हमारा जीवन है। उसमें भी सुख दुख, सफलता असफलता, प्रसिद्धि नाकामी, सब कुछ है उसमें। हर चीज का अपना महत्व है और ये सब चीजें ही हमारा जीवन को संपूर्णता देकर इस खूबसूरत बगीचा बनाता है। आप सब चिंताएं छोड़ो और इस खूबसूरत जीवन का आनंद लो। भैया अभी आ जाइए, खाना खा लेते हैं, बाद में बातचीत करते हैं। ठीक है।